Practical based on internal reconstruction. So see, following is the summary balance sheet of Satyaraj Limited as on 31st March 2018. In exam आपको 31st March 20 रहे, 21 रहे, whatever. तो जो भी year रहेगा, that year you have to take it. चल, liabilities, assets. Share capital is given, that is 1,60,000 equity share of rupees 5 each, fully paid. Cumulative preference share is given, debenture is given, bank OD, creditors. Now see beta, creditors में क्या दिया बेटा, including 20,000 interest due on bank OD. What is given here? In sundry creditors, including 20,000 interest due on bank OD. Got it? Yeah. हाँ, तो मतलब क्रेडिटर्स में आपका इंटरेस्ट ड्यू भी है, इंटरेस्ट की लाइबिलिटी भी है. ओके, ठीक है. इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी. इधर आपका गुडविल क्या होगा बेटा? गुडविल, गुडविल fictitious asset. या गुडविल राइट ऑफ, Intangible asset. राइट, इंटेंजिबल. हाँ, right of हो जाएगा. हाँ. देन लैंड एंड बिल्डिंग, इक्विपमेंट, डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, कैश एट बैंक. पीएनएल, हाँ. पीएनएल क्या होगा बेटा? और ये abnormal loss. राइट ऑफ, बराबर है, Right of. हाँ. राइट ऑफ, हाँ. बिकॉज इट्स एन एक्यूमुलेटेड लॉस, तो ये भी राइट ऑफ हो जाएगा. हाँ. Preference dividend is in arrears for 5 years. Preference dividend is in arrears for 5 years. Following scheme of reconstruction was approved by the court. See beta, Syria. Preference dividend is in arrears for 5 years. What does it mean? Preference dividend is in arrears for 5 years. मतलब ये कौन सा liability? 5 years. Which liability is this? Contingent liability. Contingent liability. Here note is not given, but you have to understand it logically that preference dividend जो होता है, preference dividend arrears, that is what like a contingent liability. Following scheme of reconstruction was approved by the court, and you know that internal reconstruction must be approved by the court. That's it. Yeah. Excuse me. Right? Internal reconstruction must be approved by the court. Remember it. Now see, adjustment. Adjustment number 1. See what is given. Equity share be reduced to 1.25 each. What is given? Equity shares be reduced to 1.25. 1.25 each. जरा देखना बेटा, इक्विटी शेयर अपना कितना था? It was 5. 5. It will get reduced to 0.25. 1.25. बेनिफिट कितने का हो रहा है? बेनिफिट 3.75. 3.75. यस, तो हाँ. 3.75 का क्या हो जाएगा बेटा? कैपिटल रिडक्शन. Yeah. करेक्ट है. अभी देखो ना आप, हाँ. एलसी है आपके पास 1,60,000 इंटू कर लो, 1,60,000 इंटू 1.25, 2 लाख. हाँ. बस, तो 2 lakhs का न्यू शेयर कैपिटल आ जाएगा, न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल, एंड बैलेंस विल बी व्हाट टेकन एज कैपिटल रिडक्शन. दैट्स इट. क्लियर? बराबर? Yes. Yes. Equity share be reduced to 1.25 each and then to be consolidated into shares of rupees 10 each. Now remember this. Equity share be reduced to 1.25 each and then to be consolidated into shares of rupees 10 each. Means what? 1.25 तो आपने कर लिया, that's done. उसके बाद finally it will be consolidated into shares of 10 each. Means अगर आप बैलेंस शीट में लेके जाओगे ना, बैलेंस शीट में जैसे सिंपल अभी आपको आया था ये 1.25, 1,60,000. राइट? क्लियर है बेटा? बराबर? नाउ बैलेंस, when you will show this in balance sheet equity share capital, तो आपको फेस वैल्यू दिस 1.25 नहीं लेना बेटा, आपको 1.25 नहीं लेना है, because here it is given that it should be consolidated into shares of 10 each.
तो अब क्या हो जाएगा बेटा, 10 each, तो 10. डिवाइड बाय 10, मतलब 16,000 शेयर, हाँ 16,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, बराबर है, दैट इज 1,60,000. हाँ In balance sheet you won't write 1.25 because here consolidation is given. Got it? Clear है बेटा? yes sir. हाँ कंसोलिडेशन है बेटा, वो बैलेंस शीट में ध्यान रखने का, जब बैलेंस शीट आप इक्विटी शेयर कैपिटल बनाओगे ना, बराबर है, इक्विटी शेयर कैपिटल ये कितना हाँ हाँ 1.25 किया था, तो 2 लाख आया था ना, तो चलो वही एग्जांपल के हिसाब से देखो, हाँ अभी ये 1,60,000 इंटू 1.25 कितना आया था आपका 2 लाख, बराबर. 2 lakhs. सो हाँ 2 lakhs, इट मीन्स व्हाट, 10 से डिवाइड किया तो कितना हो गया 20,000 20,000. इक्विटी शेयर्स, 20,000 equity shares of rupees what beta 10 each, 10 each. 10 each, that is 2 lakhs. Got it? Clear? हाँ Without इसमें. yes sir. नहीं. Now the next one, see second one, 6% preference shares be reduced to ₹40 each. What is given? 6% preference shares be reduced to ₹40 each, and 40 each. then to be subdivided into shares of ₹10 each. So beta reduced to 40 each means capital reduction will be balancing figure, that is 60. हाँ 60. 100 minus 60. 40. हाँ क्या है 4,000 शेयर्स है इंटू 40, तो न्यू प्रेफरेंस शेयर क्या हाँ आ रहा है अपना 4,000 इंटू 40, दैट इज 80,000. कितना आ रहा है एक 4,000 इंटू 40, 1,60,000. बराबर है 1,60,000. हाँ हाँ और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा दैट विल बी योर कैपिटल रिडक्शन, जो भी बैलेंस आएगा, हाँ फिर 4,000 इंटू 60 के हिसाब से, यस और नो. yes sir. तो बच्चा अब ये देखना, इधर क्या बोल रहा है आपको कि इधर भी वही चीज है, सब डिवाइडेड है ना, सी, एंड देन टू बी सब डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. तो चलो कितना आ गया था अपना इधर 1,60,000, बराबर है. हाँ Now what is given? It must be subdivided, means then to be subdivided into shares of ₹10 each. Subdivide करना है, subdivided, तो subdivide करने के लिए क्या करना पड़ेगा, what to do, directly 1,60,000 है, तो 1,60,000 अब हाँ subdivide shares of ₹10 each, तो divided by 10, हाँ same बेटा, मतलब वही 16,000 16,000. 16,000. हाँ अब ये कौन सा शेयर है, प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, दैट्स इट, 16,000 हाँ ₹10 each, दैट्स इट. क्लियर, बराबर. yes sir. 1,60,000 है, हाँ अभी फेस वैल्यू देखो, सब डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹10 बोला है, तो 10 होगा तो इसका मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट मालूम पड़ गया ना, विल गेट टू नो दैट डायरेक्टली, दैट इज हाँ 16,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each, यस और नो. yes sir. क्लियर बेटा, एनी डाउट? हाँ no. चल now next adjustment number 3. Now see adjustment number 3, what is given here, adjustment number 3, see, interest accrued but not due, interest accrued but not due on 8% डिबेंचर, मतलब ये जो 8% डिबेंचर था ना बेटा, उस पे इंटरेस्ट एक्रू हुआ है, हाँ इंटरेस्ट इज व्हाट आउटस्टैंडिंग, हाँ इज व्हाट आउटस्टैंडिंग, ठीक है, बट नॉट ड्यू हाँ 8% डिबेंचर फॉर हाफ ईयर, फॉर व्हाट बेटा, हाफ ईयर, half year. for half year at 31st March 2018 has not been provided in the above balance sheet. मतलब ये इंटरेस्ट एक्रूड पता है ना बेटा, इंटरेस्ट एक्रूड इज व्हाट आर लाइबिलिटी, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है मींस हाँ यस और नो. liability. ये डिबेंचर के ऊपर अगर इंटरेस्ट देना है आपको 8%, तो दैट इज व्हाट योर लाइबिलिटी ना, यू हैव टू गिव द इंटरेस्ट ना बेटा, एक्रूड है मतलब दैट इज लाइबिलिटी, बट वो लाइबिलिटी कंपनी ने ऊपर इधर दिखाया नहीं है, बैलेंस शीट में दिख रहा है किधर,
इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट दिख रहा है, बट दिस इंटरेस्ट इज व्हाट रिलेटेड टू बैंक, हाँ, ये बैंक ओडी का बैंक ओवरड्राफ्ट, बराबर है, दिस इज नॉट फॉर। हाँ, तो आ जाओ, हैज नॉट बीन प्रोवाइडेड, तो ठीक है अभी प्रोवाइड करेंगे हम लोग, बराबर है, नॉर्मल सी बात है। और प्रोवाइड करो हाँ, लाइबिलिटी इंक्रीज होगा ना बेटा अपना, कॉमन सी बात है। Yes, हाँ, तो लाइबिलिटी, बेटा लाइबिलिटी इंक्रीज होगा तो नॉर्मल सी बात है लॉस होगा, हाँ, उसके लिए कैपिटल रिडक्शन आपको क्या हाँ, डेबिट करना पड़ेगा, है कि नहीं? हाँ, क्योंकि लाइबिलिटी पहले बैलेंस शीट में था ही नहीं, अब आप क्रिएट करोगे तो क्रिएशन कहां से होगा, लाइबिलिटीज ये सब कहां से क्रिएट करोगे, कैपिटल रिडक्शन से ही करोगे ना बेटा, यू हैव टू क्रिएट दैट, हाँ, बट आउट ऑफ कैपिटल रिडक्शन, यस और नो, बराबर है? या, Correct? यस, पहला क्या करने का बेटा, पहले तो आप इसका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कर लो जरा। 4 लाख है, 4 लाख का 8% आया 32,000, यस और नो? हाँ, बट हाफ ईयर के लिए, हाफ ईयर मतलब डिवाइड बाय क्या हो जाएगा बेटा, तो कितना हो गया 6 6, into 6 डिवाइड बाय 12 होगा, हाँ तो 6 डिवाइड बाय 12 करो या फिर डिवाइड बाय 2 कर लो, बराबर है, एक ही मतलब 16,000, 16,000 का इंटरेस्ट आ गया, राइट, बराबर है बेटा? हाँ, यार हाँ, अब वो जो 16,000 का इंटरेस्ट है ना बेटा, बराबर है, वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा अभी, क्योंकि ऊपर हाँ, लाइबिलिटी है ही नहीं ना बेटा, इज देयर अ लाइबिलिटी, हाँ, नो, तो बैलेंस शीट देयर इज अ इंटरेस्ट accrued but not due on 8% डिबेंचर, दिख रहा है क्या किधर, नहीं है ना, है क्या इधर? नहीं है, तो आप क्रिएट किधर से करोगे नहीं, लाइबिलिटी, कैपिटल रिडक्शन से क्रिएट करोगे ना भाई, कैपिटल रिडक्शन ही यूज करोगे ना अगर लाइबिलिटी आपका इंक्रीज, हाँ, यस और नो? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, हाँ, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट कितना बड़ा 16,000, यस और नो? 16,000, बराबर, हाँ, चलो आगे क्या बोल रहा है, हाँ, वेंचर होल्डर्स हैव agreed to receive 40% of this interest in cash immediately। अभी क्या बोल रहा है, जो डिबेंचर होल्डर्स है ना, डिबेंचर होल्डर्स हैव एग्रीड, व्हाट, they have agreed to receive 40% of this interest in cash immediately, हाँ, immediately। तो देखो, the debenture holder हाँ, has to receive 40% of this interest in cash immediately, इसका मतलब क्या, आप 40% immediately पे कर दोगे, राइट है, क्लियर है हाँ, भाई, डिबेंचर होल्डर रिसीव करेगा ना, हाँ, कंपनी के पास से तो कैश बैंक जाएगा, यस और नो, राइट? यस, तो कंपनी का हाँ, कैश बैंक जाएगा मतलब टू बैंक अकाउंट क्रेडिट हो गया, हाँ, राइट? 16,000 का 40%, हाँ, और कितना 40, 6,400, यस, एंड उसके बाद क्या बोल रहा है, फॉर बैलेंस, और जो बैलेंस होगा ना, बैलेंस, बराबर है, उसके लिए क्या करना हाँ, पड़ेगा, कैश इमीडिएटली एंड प्रोविजन फॉर द बैलेंस टू बी मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, और जो बैलेंस होगा हाँ, उसको प्रोविजन करना है, उसके लिए व्हाट यू हैव टू डू, हाँ, टू मेक अ प्रोविजन, मतलब वही जो इंटरेस्ट है वही प्रोवाइड करना है, ठीक है, हाँ, क्या हो गई, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, न्यू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आ गया अपना, हाँ, 9,600, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, गॉट इट, क्लियर है बेटा, यस, इज देयर एनी हाँ, डाउट, नो, कर दो, हाँ, ओके, चल, तो ये चीज अपने माइंड में रखना, भूलना नहीं बेटा इसको, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, ये कितना परसेंट हो जाएगा बेटा अपना, 60%, दिस हाँ, 60%, 60%, क्लियर, ओके, यस, चल, हाँ, नेक्स्ट वन, सी, fourth adjustment is what, rupees 24,000 be paid to preference shareholders, क्या बेटा 24,000 किसको पे कर, preference shareholders, preference shareholders preference shareholders, in lieu of arrears of preference dividend, in lieu of what, arrears of preference, areas of preference dividend, got it, तो देखो 20, हाँ, 24,000 be paid to preference shareholders in lieu of arrears of preference dividend, तो याद रखना किसको पे करना है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, वी हैव टू पे टू whom,
प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, व्हाट इट क्लियर? तो बेटा अब बताओ मेरे को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करना है एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। मैंने आपको क्या बताया था बेटा, अगर कंटिंजेंट लायबिलिटी वेव ऑफ होगा, सेक्रीफाइस होगा, वेव्ड ऑफ होगा, तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट नहीं होगा, व्हाट इट? बट अगर कंटिंजेंट लायबिलिटी पेड ऑफ होगा, तो इन सच केस कैपिटल रिडक्शन अकाउंट विल बी, बोलो, Debited. yes, that's it, because you are paying the contingent liability, so capital reduction account debited, what it बेटा क्लियर है? हाँ. Yes sir. तो इसका एंट्री भी सिंपल क्या हो जाएगा, कैपिटल रिडक्शन डेबिट टू व्हाट गोज आउट, To bank. टू बैंक, टू बैंक अकाउंट, क्लियर बेटा? Yes sir. चलो, now fifth one, the debenture holders have also agreed to accept equal number of 9% debenture of rupees 60 each in exchange of 8% debenture of 100 each. बराबर है? क्या बोल रहा है बेटा? The debenture holders have also agreed to accept what? Agreed to accept what? Equal number. Equal number 9% debentures. बराबर है? Equal number of what बेटा? 9% debenture of rupees 9% debentures. 60 each. 60 each in exchange of what? In exchange of 8% debenture. Percent debentures of 100 each. Okay? तो इधर तो कॉमन है, एकदम सिंपल है कि डिबेंचर होल्डर्स हैव agreed to accept equal number of what? Equal number of 9% debentures. Equal number of what? 9% debentures. Rupees 60 each in exchange of what? In exchange of 8% debentures. rupees 100 each. तो ये तो कॉमन है ना, ये तो एकदम वेरी। अभी देखो 8% डिबेंचर दिख रहा है बेटा इधर, कैन यू सी इट? हाँ. अब क्या डेबिट हो जाएगा. यस ये 4 लाख डेबिट हो गया, और न्यू क्या देंगे, न्यू क्या देंगे को 9% डिबेंचर्स देंगे ऑफ रुपीज 60 60 each. इक्वल नंबर मतलब क्या, पहले कितना डिबेंचर्स था 4 लाख, और ये 100 का फेस वैल्यू, कितना डिबेंचर था 4000, पर कितना हो बेटा 4,000. तो सेम 4,000 into 60. मालूम पड़ा कि नहीं? तो 4000 into 60 किया तो 2,40,000, 2,40,000. और बाकी बचा कैपिटल, यस और नो? हाँ. Capital reduction 1,60,000. That's it. Clear है बेटा? हाँ. चलो now next, bank has agreed to take over 50% of stock. What बेटा? Bank has agreed 50%. 50% stock, full satisfaction of its claim including interest. ठीक है? तो बैंक हैज एग्रीड टू टेक ओवर 50% ऑफ स्टॉक, 50% स्टॉक ले रहा है इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ इट्स क्लेम इंक्लूडिंग, सो द रिमेनिंग स्टॉक टू बी रिवैल्यूएटेड 1,20,000। तो ये तो बाद में देखेंगे, फर्स्ट देखो क्या बोल रहा है, बैंक हैज एग्रीड टू टेक ओवर 50% ऑफ स्टॉक इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ इट्स क्लेम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। व्हाट इज सेइंग हियर? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो चलो, बैंक मतलब ये दिख रहा है, बैंक ओडी दिख रहा है आपको? हाँ. ओडी कितना है 1,50,000, बैंक हैज एग्रीड टू टेक, तो बैंक ओडी 1,50,000, और उसके ऊपर जो इंटरेस्ट था 20,000, बोल रहा है ना बेटा इधर, बैंक हैज एग्रीड टू टेक ओवर 50 स्टॉक इन फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ इट्स क्लेम इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो बैंक का क्लेम क्या है बेटा? बैंक ओडी है एंड इंटरेस्ट है, यस और नो? बैंक इंटरेस्ट, तो 1,50,000 प्लस 20 कितना हो गया? 1,70,000। 1,70,000. 1,70,000 हो गया। अब बोल रहा है बेटा एंट्री कैसा हो जाएगा, करेंगे हम लोग पास अभी, कि बैंक ओडी डेबिट बराबर है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी भी डेबिट, यस और नो? तो इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी के जगह पे क्या लिखने का, इन प्लेस ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी सन्ड्री क्रेडिटर्स लिखो ना,
because that interest is included in sundry creditors. Yes or no? Yes, sir. तो पास करेंगे एंट्री हम लोग. हाँ. तो दोनों डेबिट हो गया, बैंक ओडी एंड देन सन्ड्री क्रेडिटर्स ब्रैकेट में लिख देने का इंटरेस्ट ऑन बैंक ओडी. गॉट इट? क्लियर? Yes, sir. Yes. क्या दे रहे हैं हम लोग उसको? स्टॉक दे रहे हैं. स्टॉक कितना परसेंट? 50% ऑफ स्टॉक. तो 330 340 का हाँ. लाइक 30 40 स्टॉक हम लोग उसको दे रहे हैं. तो 50% हाँ. 50% क्या हो जाएगा बेटा? गोज आउट. 1,65,170. करेक्ट. तो ये अपना 50% जो भी आया वो गोज आउट हो जाएगा और बाकी जो बैलेंसिंग फिगर जो भी आएगा वॉट एवर बैलेंसिंग फिगर विल बी देयर दैट विल बी ट्रांसफर टू विच अकाउंट? कैपिटल रिडक्शन. Capital reduction account. क्लियर? मालूम पड़ गया? Yes, sir. चल. हाँ. Now the remaining stock be revalued at 1,20,000. क्या बोल रहा बेटा? अब जो रिमेनिंग स्टॉक है वैल्यूड कितना हो रहा है? 1,20,000. तो रिमेनिंग 1,20,000. वही 1,65,000. कितना बोला आपने? 1,65,000 170 ना? हाँ, 1,70,000. हाँ, तो वो रिमेनिंग स्टॉक कितना रिवैल्यू हो रहा है बेटा? सिर्फ ओनली 1,20,000. ओ माय गॉड. 1,20,000. हाँ. तो डाउन हो गया फिर स्टॉक का. यस और नो? हाँ. बराबर. Yes, sir. 1,65,000 170 का स्टॉक 1,20,000 हो गया. मतलब कैपिटल रिडक्शन क्या हो जाएगा बेटा? डेबिट. यस और नो? हाँ. क्लियर? Yes, sir. Yes. नेक्स्ट वन, इन्वेस्टमेंट बी सोल्ड फॉर ₹40,000. क्या बोल रहा बेटा? इन्वेस्टमेंट आप सोल्ड करोगे कितना? Investment sold for 40,000. 40,000 में. चलो, अगर इन्वेस्टमेंट सोल्ड करेगा तो क्या आएगा अपने पास? कैश बैंक कम्स इन. हाँ. क्लियर? यस और नो? Yes, sir. और इन्वेस्ट Yes. 45,450 का है. सी हियर. हाँ. 45,450 का इन्वेस्टमेंट है. सेल किया तो कितना आ रहा है? ओनली 40,000. 40,000. क्या हुआ हाँ. बेटा? लॉस हुआ. हाँ. तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट होगा. तो भी डिफरेंस आएगा. दैट विल बी लॉस. दैट विल बी ट्रीटेड. हाँ. फिर क्या बोल रहा है बेटा? टेंजिबल फिक्स्ड असेट्स. क्या बोल रहा है इधर? टेंजिबल, जो टेंजिबल Tangible fixed assets. अप्रिशिएट होगा 20% से. कितने परसेंट से? टेंजिबल 20%. be appreciated by 20%. Goodwill be written off in full and provision be made for doubtful debts. Provision made for doubtful debts is what? 20,000. Got it? Yes, sir. चलो, टेंजिबल फिक्स असेट अप्रिशिएट हो रहा है 20% से. ये अप्रिशिएट हो रहा है 20%. हाँ. अप्रिशिएट होगा तो कैपिटल रिडक्शन क्या हो जाएगा बेटा? कैपिटल रिडक्शन. Credit. यस, ठीक है. गुडविल रिटर्न ऑफ होगा तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट. बराबर. हाँ. क्लियर? राइट. Yes, sir. एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना कर रहे हैं हम लोग? 20,000. तो प्रोविजन फॉर 20,000. तो फिर भी कैपिटल रिडक्शन क्या होगा बेटा? डेबिट ही होगा ना? Yes. Debit ही होगा. हाँ. कि Yes, sir. डेटर्स पे होगा. डेटर्स. यस और नो? बराबर है. तो बेटा डेट Yes, sir. प्रोविजन हाँ. मतलब अपना डेटर्स रिड्यूस होगा एंड डेटर रिड्यूस होगा तो क्या होगा? अपना असेट कम होता है ना बेटा. बराबर है. हाँ. कम होगा तो क्या होगा? अपने लिए लॉस ही है. यस और नो? हाँ. Yes, sir. मालूम पड़ गया? हाँ. चलो. हाँ. तो ये हो गया. सेम जर्नल एंट्रीज. क्या क्या बनाने का इसमें? जर्नल एंट्रीज. अभी देखो, अगर एग्जाम में हाँ. विदाउट नरेशन, क्या बोला? ये दिख रहा है इधर? कैन यू सी इट? विदाउट नरेशन दिख रहा है बेटा? हाँ. विदाउट Yes, sir. देन डोंट राइट नरेशन. अगर नरेशन ऐसा हाँ. विदाउट नरेशन तो नहीं लिखने का. अगर नरेशन बोला Okay. कुछ नहीं बोला है तो ही लिखने का. अदरवाइज अगर स्पेसिफाई किया ना ऐसा विदाउट नरेशन, हाँ. डोंट राइट नरेशन. बराबर है. लेकिन कुछ नहीं बोला, ठीक है. पास हाँ. बोला, इफ इट इज गिवन ओनली पास एंट्रीज, तब तो भाई नरेशन लिखना पड़ता है कि नहीं? हाँ. कि अपना Yes, sir. होगा. बराबर. या दूसरा कोई सिस्टम होता है उसके लिए. बाकी एमसीक्यूज के लिए तो भाई अपने को जो फंडा है, जो कैलकुलेशन है, जो एडजस्टमेंट, हाँ. ठीक है, उसके लिए नरेशन का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है. समझा? बराबर है. हाँ. चल, Yes, sir. पास करना है, प्रोडक्शन है और बैलेंस शीट है. सो ये था अपना क्वेश्चन. आ जाओ.
So journal entry step by step we'll going to pass it. So we will start from here. ठीक है, एडजस्टमेंट के साथ आप जर्नल एंट्री स्टार्ट कर सकते हो. तो चलो लेट्स स्टार्ट to pass journal entries. Now directly company name Satyaraj Limited, journal entries, number particulars, LF, debit rupees, credit rupees. तो फर्स्ट वन इक्विटी शेयर आपका रिड्यूस हुआ था 1.25 जो कि आपने अभी डिस्कस किया, राइट. आई टोल्ड यू एवरीथिंग. रिड्यूस टू 1.25 ईच. तो इक्विटी शेयर है कितना, 1,60,000 ऑफ रुपीज 5 ईच, बराबर है. एंड देन कंसोलिडेटेड इनटू शेयर्स ऑफ 10 ईच. तो इसका काम तो बैलेंस शीट में आएगा. तो आ जाओ. तो फर्स्ट इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 8 lakhs. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट. तो ओल्ड वन जो है वो कैंसिल हो जाएगा. तो ओल्ड वन कितना था अपना, कितना था बेटा, 1,60,000 ना, 1,60,000 इंटू 1,60,000 into 1.25. तो पहले 1,60,000 इंटू 5 कितना हो गया बेटा, 8 lakhs. 8 lakhs. देन न्यू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल 1,60,000 into 1.25. 2 lakhs. बेटा इधर है ना रफली कैलकुलेशन करना, इधर लिखना मत. हम लोग लिखते थे ना पहले एवरीथिंग 160 इंटू 1.25, बराबर है कि नहीं, ऐसा लिखते थे हम लोग पहले. बट इधर मैं क्यों बोल रहा हूँ नहीं लिखने का, पता है आपको, व्हाई आई एम सेइंग दिस, कि इधर ये मत लिखो, खाली चाहिए तो रफली कैलकुलेशन कर लो कैलकुलेटर में. पता है क्यों, क्योंकि इधर कंसोलिडेशन हुआ है, बराबर है. कंसोलिडेशन में वो वैल्यू 10 रुपीज हो जाएगी, बराबर है. तो फाइनली बैलेंस शीट को 10 रुपीज के हिसाब से लेना है. तो इसलिए इधर लिखने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली साइड में कैलकुलेशन कर सकते हो आप कैलसी में कि 1,60,000 इंटू 1.25 कितना आ रहा है, 2 lakhs. 2 lakhs. एक्चुअली इधर क्या है, कैपिटल रिडक्शन. इधर क्या लिखना चाहिए, इधर 2 lakhs डिवाइड बाय कंसोलिडेशन होके कितना हो गया, कंसोलिडेशन होके 10 हुआ ना. 10. तो फेस वैल्यू दैट इज व्हाट 10, यस और नो, बराबर. 10 हाँ, यस. इनके हिसाब से 10 कैंसिल, मतलब 20,000 शेयर्स into 10. इधर एक्चुअली ये लिखा जाना चाहिए, समझे अभी, बराबर है बेटा. हाँ. ये यहाँ अपने को दिस वी हैव टू राइट, और वो जो कैलकुलेशन है वो आप रफली या कैलकुलेटर में डायरेक्टली करके दिखा सकते हो, बराबर है. मालूम पड़ा कि नहीं, यस. वही कैलकुलेशन इधर लिखा ऐसा 1,60,025. व्हाट डज इट मीन कि नया जो शेयर है, न्यू शेयर का फेस वैल्यू कितना हो गया, 1.25 है क्या, नहीं 1.25 नहीं. वो तो कंसोलिडेशन होके 10 रुपीज हुआ ना, तो इसलिए ये इधर नहीं. अगर ऐसा कभी भी दिया ना कंसोलिडेशन हुआ या फेस वैल्यू विल रिमेन सेम, तो ऐसे टाइम पे ये सब लिखने का नहीं, ये सब नॉर्मल कैलकुलेशन कर लेने का माइंड में. चलो क्लियर है, ये कोई डाउट है इसमें, यस सर. ये मालूम पड़ा शेयर्स क्यों लिखा मैंने, आई डिडंट राइट 1,60,000 इंटू 1.25, समझ गया ना क्यों नहीं लिखा वो. बस बाकी बचा जो भी डिफरेंस आएगा दैट विल बी व्हाट, कैपिटल रिडक्शन टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. चलो कितना, 8 लाख माइनस 2 लाख, डायरेक्ट 6 लाख. 6 lakh. दैट्स इट. गॉट इट, क्लियर बेटा. यस सर. हाँ. चलो ये डन हो गया अपना. नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट अपना कौन सा था बेटा, इक्विटी शेयर डन. नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, प्रेफरेंस शेयर्स. सेकेंड वन इज फॉर व्हाट, प्रेफरेंस ना. आ जाओ देखो, सी 6% preference shares be reduced to rupees 40 each and then to be subdivided into shares of rupees 10 each. Yes or no? Yes sir. So 6% preference shares be reduced to rupees 40 each, reduced to 40 each,
and then to be subdivided into shares of ₹10 each. ठीक है, चलो तो पहले प्रेफरेंस शेयर्स जो ओल्ड वन है उसको डेबिट कर दो. 4,000 into 100 that is आ जाओ. 4,000 into 100 means प्रेफरेंस शेयर. तो आ जाओ इधर शो कर देने. क्या बेटा प्रेफरेंस शेयर था ना? अच्छा हाँ, इसका कंसोलिडेशन तो वैसे भी हम लोगों ने कर दिया इधर डायरेक्टली, तो कोई इशू नहीं है. चलो ठीक है. पर या फिर इधर देखो, सुनो, स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ. अभी देखो ये जो फर्स्ट वाला एंट्री पास किया ना हम लोगों ने, इसका एक ऑप्शन भी बताता हूँ मैं. ठीक है, अब इसमें क्या कर सकते हो, कंसोलिडेशन है तो क्या कर सकते हो आप, जैसे आपने एंट्री पास किया, ये खाली रफली कैलकुलेशन है, रफली देखो इधर सी. टी शेयर कैपिटल आपका था कितना, 1,60,000 into 5, राइट? कितना आया बेटा, 8 लाख. जो आपने इधर लिख दिया इक्विटी शेयर कैपिटल 160 into 1.25, that is what, 2 lakhs, right? 2 lakhs. Capital reduction. तो capital reduction that is 6 lakh. Clear है बेटा? 6 lakhs. कंसोलिडेशन हुआ ना इस शेयर का, क्या हुआ बेटा, कंसोलिडेशन. क्या हुआ है? कंसोलिडेशन. तो कंसोलिडेशन आपको दिखाना है नेक्स्ट एंट्री में. क्या करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल, दिख रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल दैट इज 1.25, मतलब यही सेम 1,60,000 into 1.25 बराबर है कितना, 2 lakhs. यस सर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल. फिर से दैट इज व्हाट, कंसोलिडेशन. दिस इज नोन एज व्हाट, कंसोलिडेशन. दैट इज 1,60,000 into, अभी ये कितना, सॉरी ये तो अपना 10 हो गया ना फेस वैल्यू, इधर 10, इधर 10 के हिसाब से हो जाएगा, बराबर है? तो 10 के हिसाब से हो जाएगा, मतलब कितना शेयर, 20,000. 20,000 into 10, 2 lakhs. तो दिस इज व्हाट कंसोलिडेशन. ये क्या, कंसोलिडेशन. ऐसे भी पास कर. अब इधर देखोगे, अब क्या होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल ये 2 lakhs और इधर इक्विटी शेयर कैपिटल ये 2 lakhs. दिख रहा है क्या? ये क्रेडिट है, ये डेबिट है. रेक्टिफिकेशन पढ़ा है ना, रेक्टिफिकेशन, उसमें क्रेडिट एंड डेबिट क्या होता है, कैंसिल, बराबर है कि नहीं? तो एंट्री क्या बना अपना, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, इक्विटी शेयर टू कैपिटल रिडक्शन टू इक्विटी शेयर कैपिटल रिडक्शन. आ गया ना वही सेम एंट्री, ये जो बताया मैंने. दिख रहा है? बराबर है, मालूम पड़ा? तो ये दिस इज नोन एज कंबाइंड एंट्री, बराबर है. लेकिन अगर डाउट होगा ना तो आप सेपरेट ऐसा कर सकते हो कि भाई 1.25 के हिसाब से था, फिर बाद में क्या करने का, वो जो 1.25 है उसको कन्वर्ट कर देने का किसमें, 10 रुपीज फेस वैल्यू में. व्हाट इट, क्लियर है? यस सर. ऐसा ही लाइक दिस, ये वाला देखो टेक्स्ट बुक में चेक कर लो, चाहिए तो ऐसा ही मिलेगा. ऑथर्स में ऑथर्स ऐसे ही पास किया, और हमने इधर कंबाइंड एंट्री पास किया है. दिस इज नोन एज व्हाट, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का फंडा. कंबाइंड एंट्री आप पास कर सकते हो ऐसे. व्हाट इट, तो आपके ऊपर डिपेंड है, आपको कंबाइंड पास करना तो कंबाइंड पास करो, या फिर एक पूरा प्रोसेस यूज करना है तो प्रोसेस के लिए आपको ये एंट्री फर्स्ट पास करना है जिसमें 1.25 रहेगा अपना, फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट करके 10 रुपीज का फेस वैल्यू लेना है. व्हाट इट, क्लियर है? ओके, यस सर. दोनों करेक्ट है, टेंशन नहीं लेना, बराबर है. इधर हमने डायरेक्टली कंसोलिडेट कर दिया उसको, ठीक है, डायरेक्ट. आ जाओ, तो आपके ऊपर डिपेंड है, इधर दिस पास मींस दिस एंट्री यू कैन पास इट, और आप 2 एंट्री करके कंसोलिडेशन का प्रोसेस दिखा के पास कर सकते हो. ठीक है, ओके. चलो, यस सर. तो सेकेंड एंट्री में हम लोग कौन सा देख रहे थे बेटा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. आ जाओ, सी प्रेफरेंस. अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, ये डेबिट करने के लिए बोल रहा था ना मैं. हाँ यस, आ जाओ, ये देख रहे हो बेटा, 6% preference share, yes, to 40 each and then to be subdivided into shares of 10 each. चलो, तो
क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स पहले अपने को डेबिट करना पड़ेगा 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। 6% जो आपका क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, डेबिट। चलो ब्रैकेट में कितना, सिंपल क्या रहेगा बेटा, इधर देखो कितना शेयर था अपना, 4000 था ना बेटा, 4000 4,000 हाँ into 100, into 100 4000 into 100, that is 4 lakh, 4 lakh. ठीक है, 4000 into 100 that is Yes. 4 lakhs, ठीक है। टू what, टू अब क्या 6% preference share. तो किसमें 6% देख रहे हो, क्वेश्चन में आपको क्या देता है 6% हाँ reduced to ₹40 each, तो पहले 40 each, 40 each. हाँ लेकिन बाद में क्या वो सब डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब डिवाइडेड। हाँ सब डिवाइड. तो चलो ये वाली एंट्री हम लोग वो प्रोसेस वाले एंट्री के हिसाब से पास कर लेते हैं, चलेगा कि हाँ पास करो इसको, बोलो इसमें वो प्रोसेस यूज करो एंट्री वाला कि कंबाइंड पास करो। हाँ चलो इसमें प्रोसेस यूज कर लेते हैं, आ जाओ। अभी एक कंबाइंड सीख गया ना ऊपर, ठीक है. अब इसमें प्रोसेस दे देते, हाँ यूज हियर प्रोसेस आल्सो कि कैसा प्रोसेस से जाएगा। तो टू वही अपना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है बेटा, 6%, हाँ अभी कुछ नहीं बोला है मतलब, preference share capital. है कि नहीं, 6% कुछ नहीं बोला तो सेम रहेगा, 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है। तो कितना रहेगा इधर 40 के हिसाब से, 40, ठीक है। तो 4000 इंटू 40 कितना आ रहा है, 4000 इंटू 40, 1,60,000. डिफरेंस इज व्हाट बेटा, डिफरेंस इज कैपिटल रिडक्शन, For 1 second. डिफरेंस इज हाँ 2,40,000. reduction, that is 2,40,000, that's done। चलो फिर उसके बाद आ जाओ थर्ड एंट्री। अब आपको सब डिवीजन का प्रोसेस फॉलो करना है, नाउ यू हैव टू फॉलो योर प्रोसेस। अब वो करने के लिए ये जो दिख रहा है आपका, कैन यू सी दिस, हाँ अब इसको क्या करो बेटा, डेबिट, yes क्या करना है आपको इसको, debit. हाँ ये 40 debit. दिस इज एज पर व्हाट ₹40, तो इसको पहले डेबिट करो, हाँ करोगे तो क्या हो जाएगा, वही 6% cumulative preference share capital. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितना, अभी देखो 4000 इंटू ये 40 के हिसाब से, 40 मेन आपका क्या है इधर, ये 40, चलो तो कितना आया 1,60,000, राइट बेटा, 1,60,000 बराबर। अब सब डिवीजन में ये कितना हो जाएगा बेटा, सब डिवीजन में सिर्फ ये आपका 1,60,000. 10 रुपीज हो जाएगा। तो ये तो फिक्स है कि 1,60,000 अमाउंट तो ये फिक्स है, बट अब आपका ये कन्वर्ट होके 10 रुपीज का हो जाएगा बेटा, सब डिवाइड जो सब डिवीजन हुआ है ना बेटा उसके हिसाब से। तो 2% 6% cumulative preference share capital. शेयर कैपिटल अकाउंट, चलो अब ये आपका 10 रुपीज, हाँ तो देखो वैल्यू कितना है 160 का 10 के हिसाब से नंबर 16,000, 60 यस और नो, तो 60 Yes sir. इंटू Into 10. 10, दैट्स इट। तो मेन आपका इधर जो सब डिवीजन का प्रोसेस यूज हो गया ना बेटा, कि पहले एंट्री पास किया 40 के, अब दैट 40 हैज बीन कन्वर्टेड, राइट है, इनटू 10 रुपीज, मतलब सब डिवीजन हो गया, सब डिवीजन। तो सब डिवीजन में क्या होता है बेटा, बड़ा वैल्यू
कम हो जाता है, यस और नो? बड़ा वैल्यू क्या हो हाँ, जाएगा, वैल्यू के कम हो जाएगा। तो कम पहले हो जाएगा। ये 40 का 10 हो गया, बराबर बेटा, क्लियर? यस सर। हाँ, कंसोलिडेशन में क्या होता है, कंसोलिडेशन में जस्ट उसका अपोजिट, ठीक है, कंसोलिडेशन में छोटा वैल्यू बढ़, हाँ, है कि नहीं, क्लियर? हाँ, यस सर। ये हो गया अपना इक्विटी शेयर्स एज वेल एज प्रेफरेंस शेयर एंट्री डन। नाउ नेक्स्ट आ जाओ, फॉर्मेट वही सेम, कंटिन्यू फॉर्मेट, डेबिट क्रेडिट, ये LF नंबर, चलो आ जाओ, वो एंट्री नंबर 3 डन। नाउ नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर व्हाट बेटा? Oh, चलो अभी एंट्री नंबर 4 किससे रिलेटेड क्या बेटा? सी, एंट्री नंबर 4 अपना इंटरेस्ट एक्रूड वाला है, इंटरेस्ट हाँ, accrued but not due on 8% debenture for half year ended 31st March in the balance sheet, ठीक है, तो कैपिटल ऑक्शन डेबिट करेंगे। तो ये क्वेश्चन डिस्कस करते टाइम पे तो हम लोगों ने देख लिया ना बेटा, वी हैव सीन दिस, हाँ, डिस्कसिंग द क्वेश्चन, जिसमें से 40% इमीडिएटली पे करना है अपने को और बाकी का प्रोविजन मेड करना है। तो आ जाओ एंट्री पास हाँ, कर। देखो लाइबिलिटी पहले था नहीं, अभी हो रहा है, तो क्रिएट कहाँ से करना पड़ेगा आपको? कैपिटल रिडक्शन से। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट होगा, याद रखना। असेट हाँ, इंक्रीज तो कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, व्हाट इट, क्लियर? इफ यस सर। इंक्रीजेस हाँ, कैपिटल रिडक्शन डेबिट हो जाएगा, इफ असेट इंक्रीजेस तो कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट हो जाएगा, असेट इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट हो जाएगा ना बेटा, यस और नो? हाँ, चलो, तो कैपिटल रिडक्शन डेबिट, अच्छा इसका कैलकुलेशन कितना आया था आपका, कैलकुलेशन क्या? 16,000। अच्छा 16,000, ठीक है, 16,000 टू, चलो बैंक कितना परसेंट हम लोग पे कर रहे हैं बेटा? 40%, तो 16 हाँ, 6,400। paying immediately, that is 6,400, right? और बाकी का यस सर। बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। बैलेंस will be treated as interest on debentures, ठीक है, 9,600। उनका 60%, हाँ, 9,000, 600। क्लियर है बेटा? हाँ, बट एट, उसमें कोई डाउट कोई? यस सर। नहीं। चलो दिस इज ऑल्सो डन। नाउ फोर्थ भी हो गया अपना, अभी आ जाओ नेक्स्ट। हाँ, हाँ, देन क्या है बेटा? ₹24,000 बी पेड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इन लिeu ऑफ एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। तो ये कंटिंजेंट लायबिलिटी पेड ऑफ हो रहा है। इफ कंटिंजेंट लायबिलिटी इज पेड ऑफ, हाँ, then we have to debit capital reduction, yes or no? यस सर। Contingent liability will be paid off, then we have to debit capital reduction, yes or no? ठीक है, तो चलो यस। तो कैपिटल रिडक्शन आप डेबिट कर दोगे इधर, एंट्री नंबर 5, बिकॉज कंटिंजेंट लायबिलिटी इज पेड ऑफ, so कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक, that's it. Capital reduction account debit to bank account, 24,000, 24,000। right beta? 24,000, 24,000, यस सर। any doubt? नो। चलो नेक्स्ट भी डन हो गया अपना। नाउ द नेक्स्ट वन, सिक्स्थ एंट्री नंबर 6। चलो अब एंट्री नंबर 6 के लिए लेट्स सी द एडजस्टमेंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज व्हाट?
the debenture holders have also agreed to accept equal number of 9% debenture of rupees 60 each in exchange of 8% debenture of 100 each. ठीक है, तो जो 8% डिबेंचर है 100 each का, उसको पहले डेबिट कर लो और सेम नंबर इक्वल नंबर पे हम लोग क्या देंगे उसको, न्यू डिबेंचर, दैट इज 9% डिबेंचर. 9% डिवेंचर और रिमेनिंग अमाउंट कैपिटल रिडक्शन. वेरी गुड. सो आ जाओ 8% डिबेंचर्स डेबिटेड, 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट. अब वो जो 8% डिबेंचर है कितना था, अमाउंट 4 lakhs था, फेस वैल्यू इज व्हाट 100. So number of debenture is what, 4,000 into 100. Yes or no? 4,000. Yes, sir. 100. So it will come 4 lakh. 4 lakhs. अभी बेटा 2 what? 8% debentures debit हो गया. 9% debentures. Yes, to 9% debenture. New debenture हो जाएगा to 9%. 4,000 into 60. Account, that is 4,000. आ रहा बेटा 4,40,000. And balance will be treated as what? Capital reduction. Capital reduction. 4,000 into 40, 1,60,000. Capital reduction, that is 1,60,000. Yes, sir. 1,60,000. Okay. Yes, sir. So next. Now, 6th one done. After that, what is given? ये भी हो गया, ये भी हो गया, done. See, next adjustment is what? Bank has agreed to take over 50% of stock in full satisfaction of its claim, including interest. तो इधर बोल रहा है बैंक agreed to take over 50% of stock, 50% of stock in full satisfaction of its claim, including interest. इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड द रिमेनिंग स्टॉक का तो बाद में देखते हैं, पहले इसका देख लेते हैं. तो बैंक का क्या क्या क्लेम है बेटा? एक तो बैंक ओडी है, यस और नो, एंड बैंक ओवरड्राफ्ट का इंटरेस्ट का भी क्लेम है जो क्रेडिटर्स में. तो आ जाओ, ये लाइबिलिटी पहले सेट ऑफ होगी, तो लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, बट सेट ऑफ हुआ तो डेबिट, यस और नो. ठीक है, Yes, sir. तो डेबिट. चलो, बैंक ओवरड्राफ्ट सेट ऑफ करना है अपने को. बैंक ओडी, दैट इज 1 lakh. And what we have to set off? Sundry creditors. आपका इंटरेस्ट है, sundry creditors. 20,000. सेटल कर रहे हैं बेटा. What we are giving for this? See, we are giving what? You can see here, 50% of stock, full satisfaction of its claim. 50% of stock we are giving it. So stock is 330, 340. Yes, sir. हो गया, निकाल लो. So to stock, 1,65,170. 50% of 330, 340, 340. which is 1,65,170. 65,170. 1,65,170. Now to what? Capital reduction. What transfer to capital reduction? Difference will be transferred to capital reduction account. 4,830. 4,830. Got it? Yes, sir. Now, this is also done. Now the next one is what? See,
इन्वेस्टमेंट भी अच्छा अभी इसके पहले ये भी है ना, रिमेनिंग स्टॉक भी रिवैल्यूड एट 1,20,000। अच्छा बेटा स्टॉक 330 340 था, 50% स्टॉक है आपका, बचा कितना 50%, दैट इज 1,65,000 170, यस और नो? यस सर। अब वो स्टॉक कितना वैल्यू हो रहा है, रीवैल्यू होके कितना हो गया 1,20,000 बराबर। हाँ क्या हो रहा है इधर, असेट्स कम हो गया ना, योर स्टॉक वैल्यू डाउन, राइट? इट मींस असेट कम हुआ तो दैट इज व्हाट आर लॉस, यस और कैपिटल। हाँ कैपिटल डेबिट करो टू डेबिट। हाँ भाई लॉस हुआ अपना क्या, स्टॉक। सो डायरेक्ट जो लॉस का एंट्री है वो दिखा दो इधर, चाहिए कैपिटल अकाउंट डेबिट टू स्टॉक इट। चलो कितना 165 170 माइनस 1,20,000 हो गया था, सो द डिफरेंस इज व्हाट, द डिफरेंस इज कितने का लॉस हुआ बेटा 45 170, 45,170। ओके 45,000 170 का लॉस है, हाँ गॉट इट, क्लियर? यस सर। कोई डाउट इसमें? नहीं। चलो नाउ नेक्स्ट, चलो फॉर्मेट अपना वही डायरेक्टली, आ जाओ। हाँ इन्वेस्टमेंट सोल्ड फॉर रुपीज वोट बेटा 40,000, ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी 40,000, तो इन्वेस्टमेंट आपका 45 450 है, सोल्ड किया 40 में, लॉस हो, लॉस, दैट्स इट, कैपिटल रिडक्शन, यस डेबिट। यस। So ninth entry number 9, first what will come, cash bank comes in, Account debit 40,000। capital reduction will also be debit will also because loss है, टू इन्वेस्टमेंट। तो बैंक कितना आ रहा है 40 ओनली, हाँ और लॉस कितना हो गया 40 और 5,000। का 5,450 कितना 5,450 ना 5450 हाँ 5,450। टू पूरा इन्वेस्टमेंट कितना था बेटा इन्वेस्टमेंट 450 45,450। टू इन्वेस्टमेंट 45,450, right? यस सर। This is what your ninth entry, ये अपना ninth entry हो गया बेटा। Now हाँ entry number 10, sure, entry number 10, see tangible fixed assets be appreciated, तो इसमें कैपिटल क्रेडिट, गुडविल रिटर्न ऑफ इसमें कैपिटल डेबिट, डेबिट हो जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए भी कैपिटल क्या हो जाएगा डेबिट। डेबिट हो जाएगा, ठीक है। क्रेडिट होगा ओनली टेंजिबल फिक्स एसेट्स के लिए। अब बच्चा फिक्स एसेट्स में व्हाट आर द टेंजिबल फिक्स एसेट्स हियर, यू कैन सी हियर लैंड एंड बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट्स, एंड बिल्डिंग है एंड इक्विपमेंट्स है, तो ये दोनों आप कितने परसेंट से राइज हो रहा है बेटा 20% से, 260 का 20 52 और 250 का 20% 50 बराबर। तो चलो आ जाओ। सो बेटा कैपिटल क्रेडिट करोगे वो तो फिक्स है, बट किसके ऊपर प्रॉफिट हो रहा है उसको डेबिट कर दो। कौन कौन से आइटम है बिल्डिंग, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट विल बी डेबिटेड, equipment account will be debited to what, capital reduction account, कैपिटल रिडक्शन। चलो
तो 20% निकाला आपने, इसका कितना आया था 52 हाँ 52,000 और इक्विपमेंट का 20% 50 50,000 टोटल 1,02,000 1,02,000. That's it. Got it बेटा? yes sir चलो. Now after 10 और अभी कोई एडजस्टमेंट, वही लॉस वाला एडजस्टमेंट, ठीक है, राइट? सेट ऑफ करना है आपने. सी बेटा अभी क्या क्या सेट ऑफ होगा? गुडविल, ये दिख रहा है आपको? गुडविल तो कॉमन है बेटा, कॉमन आइटम है. सी हियर, हाँ मतलब ये गुडविल टू बी रिटन ऑफ, नहीं भी बोला रहेगा तो गुडविल राइट ऑफ होना ही है. गुडविल राइट ऑफ होगा. P&L accumulated losses will be written off. provision for doubtful debts फिर अपना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये भी राइट ऑफ हो जाएगा. क्लियर? मतलब राइट ऑफ करने के, ठीक है, बराबर. yes sir So for all, capital reduction account will be debited. No. Capital reduction account will be debited to goodwill account, then to profit and loss then to provision for doubtful debts provision for doubtful debts account. चलो. So for goodwill, how much? पूरा 3,40,000. Yes or no? हाँ yes sir Then P&L account profit and loss के लिए 6,00,000, 3,360. Yes or 360 yes sir हो जाएगा. अच्छा आरडीडी के लिए क्या बोल रहा था आपने को? आरडीडी के लिए डायरेक्ट अमाउंट है ना 20,000. ओके, हाँ फॉर आरडीडी डायरेक्ट अमाउंट इज गिवन 20,000. ठीक है, दैट्स yeah चलो अभी सब कुछ हो गया. अभी लास्ट एंट्री किसके लिए आएगा? अपना कैपिटल रिजर्व वाला. capital reserve ठीक है, और अगर टैली हो गया तो एंट्री नहीं आएगा, नहीं टैली हुआ तो कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर होगा. यस और नो? बराबर. yes sir क्या बनाना पड़ेगा? कैपिटल रिडक्शन. capital reduction account फुल कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. हाँ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. डेबिट, क्रेडिट, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट. पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस. ठीक है, चलो yes sir फटाफट पोस्टिंग कर दो. चलो पहला कैपिटल रिडक्शन यू कैन सी हियर. हाँ by equity share capital 6 lakh देख लेते हैं, एक ये फर्स्ट पेज में पूरा देख लेते हैं. इधर क्रेडिट है 6 लाख का इक्विटी का, इधर 2,40,000 का कैपिटल रिडक्शन. cumulative 2 lakh ठीक है, चलो. हाँ So first one by equity share capital. Equity share capital that is 6 lakh. Then shortcut में लिख रहा हूँ by 6% आपका cumulative preference share capital. Yes or no? yes sir That is what amount is what 2,40,000. Then आप yes sir आ जाओ. उसके बाद अपना नेक्स्ट एंट्री में इधर तो डेबिट है. यू कैन सी हियर. to bank to interest on debentures तो क्या लिखोगे? टू बैंक टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स. हाँ टू बैंक टू इंटरेस्ट ऑन
डिबेंचर्स अमाउंट कितना था 6,000 6,400, 9,600. एंड 9,600. देन इधर भी डेबिट है कैपिटल टू बैंक हाँ तो बैंक किसके लिए था प्रेफरेंस डिविडेंड है ना दिस वाज फॉर प्रेफरेंस डिविडेंड हाँ 24,000. 24,000. देन हाँ 6 एंट्री इधर कैपिटल क्रेडिट है तो क्रेडिट में By 8% debentures. अपोजिट का बाय 1,60,000. डिबेंचर्स दैट इज कितना 1,60,000. हाँ नेक्स्ट डिबेंचर्स डन इधर आ जाओ इधर भी क्रेडिट है कैपिटल हाँ 830 और अपोजिट में दिखा देना किससे रिलेटेड है एक्चुअली पूरा बैंक ओडी और सन्ड्री क्रेडिटर से रिलेटेड है बराबर है हाँ अपोजिट में दो हाँ. बैंक ओडी एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स राइट बट दोनों Yes sir. मिला के इतना ही होना चाहिए 4830 तो एक ही एंट्री आएगी इसको. तो एक ही में डालना तो डायरेक्टली बाय व्हाट सन्ड्री Bank and sundry creditors. क्रेडिटर्स या क्रेडिटर्स 4830. 4830 नेक्स्ट दैट्स डन नाउ ये भी हो गया हाँ इधर कैपिटल डेबिट है Two stock. टू स्टॉक टू स्टॉक चलो टू स्टॉक 45,170 45,170. चलो नेक्स्ट स्टॉक भी हो गया देन 9th वन इधर कैपिटल डेबिट है तो डेबिट में 5450 हो गया क्या टू इन्वेस्टमेंट लिखने का अपोजिट का बट अमाउंट कैपिटल के सामने वाला होना चाहिए है कि नहीं हाँ. Yes sir. 5450 देन नेक्स्ट दिस इज ऑल्सो डन ये भी हो गया कैपिटल टू स्टॉक डन हो गया अपना इधर का भी हो गया अच्छा इधर कैपिटल क्रेडिट है तो क्रेडिट में आ जाओ हाँ. अमाउंट है 1,02,000 और अपोजिट में दो एंट्री है लैंड एंड बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट हाँ. अमाउंट का टोटल करेगा तो 1,02,000 आएगा तो अलग अलग लिखने का दोनों का अमाउंट का दैट इज व्हाई वी हैव टू राइट इट सेपरेटली ओके Yes sir. Yes. तो क्या बाय लैंड एंड बिल्डिंग 52,000. 52,000 and buy Equipments 50,000. equipment that is 50,000 क्लियर बेटा Yes sir. आ जाओ और क्या है अच्छा इधर कैपिटल डेबिट में 3 एंट्रीज है गुडविल पीएनएल और हाँ. डाउटफुल डेट्स Provision for doubtful debtors. कितना आता प्रोडक्शन का ये तीनों का टोटल मारो जरा ये डेबिट में लिखा नहीं है इधर 3,00,000 हाँ. एक सेकंड. 3 प्लस 20,000 कितना आ रहा है 9,63,360. 9,63,360 बराबर Yes sir. चलो हाँ. दिखा दो तो ये तीनों एंट्री शो कर दो अभी देखो ये तीनों का टोटल इतना आ रहा है ना तो कैपिटल के सामने 9,63,360 होना ही है और ये तीनों का टोटल हाँ. जो अमाउंट है उसी का टोटल है ये तो एंट्री दिखा देना कैपिटल के डेबिट में 2 गुडविल के बाद क्या था अपना पीएनएल था ना पीएनएल PNL. 2 पीएनएल और 2 प्रोविजन और डाउटफुल डेट्स ठीक है बराबर बेटा Yes sir. हाँ. अमाउंट में आपका 340 है 3,40,000 प्लस 6,03,360 और प्लस 20,000 चलो 3,40,000 then 6,00,000
3,360, then finally 20,000. Got it? Yes, sir. चलो Yes. अब जरा देखते हैं कैपिटल रिडक्शन अकाउंट टैली हो रहा है कि बैलेंस आ रहा है. तो ये तो कॉमन सी बात है कि कैपिटल रिडक्शन में क्रेडिट साइड ही ज्यादा होने वाला है. हाँ. तो क्रेडिट का टोटल कितना है? क्रेडिट का टोटल, गेट द टोटल ऑफ क्रेडिट. 11 lakhs. 11 lakh 6,000. 11 lakh 6,830. 11 lakh 6,830. Okay. 11 lakh 6,830. 830. So tell me the balancing figure. आ रहा है क्या बैलेंसिंग फिगर? देख लो कि ये डेबिट भी सेम है. हाँ. दो में से एक ही होगा, या तो डेबिट भी सेम होगा. 50 to 850. Okay, balancing figure is there. Means 50 to 850 is the balancing figure, and this balancing figure is known as what? Your capital reserve. This is what balancing figure. ठीक है बेटा, क्लियर? हाँ. Yes, sir. चलो, तो ये हो गया बैलेंसिंग फिगर. आ जाओ 12th वन. सो क्या एंट्री? कैपिटल reduction to capital reserve. 50 to 850. रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट. दैट इज हाउ मच? कितना था बेटा? 50 to 850. 50 to 850. 50 to 850. That's it. That's done. Clear बेटा? Okay? Yes, sir. हाँ, और खाली बैलेंस शीट जब भी बनाओगे तो ध्यान देना, शेयर कैपिटल में जब भी आपका इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा तो आपको क्या लेना है पता चल गया ना? इक्विटी शेयर कैपिटल. हाँ. ये देखो इधर गया दिस वन, ये जो कंसोलिडेटेड लिया है. तो इक्विटी शेयर कैपिटल में 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. Got it? That is 2 lakhs. Yes, sir. तो यू कैन चेक इन ऑथर्स बुक. चेक करो उधर दिया है कि नहीं लोग ने. हाँ. में इशूड सब्सक्राइब रेडम में, फिर उसके बाद आगे बराबर है नीचे लिखने का 20,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹. हाँ. फिर प्रेफरेंस शेयर्स में आ जाओ. प्रेफरेंस शेयर में किधर है आपका सब डिवीजन? ओके, दिस वन राइट है. इधर हमने प्रोसेस फॉलो किया है. Yes, sir. तो अभी 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, मतलब जो इक्विटी देखो ये दिख रहा है आपको 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. तो बैलेंस शीट में आपको देखो 6% क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ ₹10. Yes. मतलब 16,000. नंबर कितना है? 16,000 16,000. प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच. ठीक है बराबर? Yes. सेम, बस वही चीज है. बाकी सब तो जो पहले करा है वैसा ही सेम आपको फॉलो करना है. ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. हाँ. शीट आपको प्रैक्टिस में करना है. और प्रैक्टिस के लिए सी मालूम पड़ गया ना ये कैसे करना है? सिंपल बैलेंस शीट में ध्यान. Yes, sir. जो कंसोलिडेशन के बाद और सब डिवीजन के बाद है वही आपका नंबर ऑफ शेयर्स और फेस वैल्यू आपको शो करना है. दैट्स इट. क्लियर? हाँ.